राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। आज भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में 1971 के युद्ध में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को दर्शाया गया। इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। भारतीय वायुसेना दिवस परेड में 1971 के युद्ध में शामिल स्थानों और लोगों से संबंधित कॉल साइन के साथ फॉर्मेशन दिखाए गए। इस मौके पर राफेल, LCA तेजस, जगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को एक साथ उड़ान भरते देखा गया। देश आजाद होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरावने, former chiefs AOC-INC Western Air Command Air Marshal Amit Dev, senior officers from the three services and the Ministry of Defence, defence attaches of friendly foreign countries, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. On the 89th anniversary of the Indian Air Force, I extend my best wishes and welcome you all to this event. First and foremost, I place on record my appreciation for the parade commander and all air warriors on parade for an exceptional display of discipline and josh. Your precise drill movements and immaculate turnout are indicative of high levels of morale, pride in your uniform, and esprit de corps, all of which form the bedrock of the Air Warriors credo. I would also like to congratulate all the award winners for their exemplary achievements. Good show and well done. My compliments to the Air Officer Commanding in Chief Western Air Command and Air Officer Commanding Hindon for putting up such a befitting show despite ongoing operational commitments and challenges posed due to the COVID pandemic. As the Indian Air Force enters its 90th year, the men and women in blue who serve the nation today are proud custodians of a legacy of valor, sacrifice, and pioneering spirit. It is a great honor for me to stand before you as the successor to a great lineage of commanders who charted a course for the service and brought us to where we stand today. Their achievements have not come without cost. In particular, I salute the former chiefs for their visionary leadership. As our challenges continue to rise, so does our strength and resolve to ensure the best possible application of air power. When I look at the security scenario that we face today, I am acutely conscious that I have assumed command at a crucial time. We must demonstrate to the nation that external forces will not be allowed to violate our territory. I pledge to do all I can to provide you with clear directions, good leadership, and the best of resources that I can muster. On behalf of all air warriors, I also pay homage to our fallen braves who have made the supreme sacrifice in the line of duty. Today is an occasion to renew our solemn pledge for preserving the Indian Air Force's rich heritage and passing it on to future generations. Dear air warriors, the year gone by has been quite challenging, yet extremely rewarding. The prompt actions in response to developments in eastern Ladakh was a testament of the Indian Air Force's combat readiness. Our efforts in completing all COVID-related tasks was also a major achievement in support of the national effort. Your accomplishments have been impressive, and you have helped
achieved significant progress in many areas. I want to thank each of you and your families for the sacrifices that you have made and continue to make while serving in this glorious service. I will continue to rely on your skills, courage, determination, and hard work in the years ahead. Remember that it is our sacred duty to protect the nation's sovereignty and integrity at any cost, and you are to do what it takes to ensure that we do not let the nation down. The security environment in our region and beyond has been impacted by a complex interplay of geopolitical forces. Moreover, the advent of new domains over and above the traditional domains of land, sea, and air have resulted in a paradigm shift in the way military operations will be conducted. It is my firm belief that while we continue to acquire latest technology, there is a much greater need to devote our attention to the people placed below us. As the seniors, invest your time and effort in nurturing and empowering your subordinates. I am confident that each one of you will treat this important task as your primary responsibility. हिमाचल में विधानसभा उपचुनावों से पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अर्की विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सहयोग देने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा उम्मीदवार रतन सिंह पाल के लिए क्षेत्रवासियों से वोट की भी अपील की। अनुराग ठाकुर ने पार्टी उम्मीदवार रतन सिंह पाल के नामांकन के उपरांत जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने हिमाचल के विकास हेतु हर आवश्यक कदम उठाए हैं। मेरा अनुरोध है कि इन उपचुनावों में भाजपा को भारी मतों से विजय बनाएं और अपने क्षेत्र की चहुमुखी विकास के भागीदार बनिए। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अपनी पार्टी के बारे में क्या शब्द कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, ये अंतर है दो राजनीतिक दलों में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस परिवार से चलती है और हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता ही हमारा परिवार है। इंसानों के लिए तो एम्बुलेंस देने का काम प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने 108 नंबर एम्बुलेंस अटल जी के नाम से शुरू कर ही दी थी। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार पशुओं के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत भी करने वाली है। भाई रतन पाल सिंह जी को जिताइए, कमल का बटन दबाइए और विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भाई रतन पाल जी को अपना पूरा आशीर्वाद दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपकी सड़कों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या बाकी सुविधाओं की बात हो, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। एक लोकसभा और 3 विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उन सभी में विजय हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दी है और आज अर्की में हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रतन पाल सिंह जी के चुनाव अभियान में मैं आया हूँ। नामांकन इन्होंने आज दाखिल किया है। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और जनता के बीच में पिछले 4 वर्षों में अपना सेवाएं देकर योगदान किया है, इलाके का विकास किया है। अब जब विधायक बनेंगे तो इसका चहुमुखी विकास और करेंगे। सर, टिकट आवंटन के बाद कुछ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे जिनका नाम चल रहा था वो नाराज चल रहे हैं और कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट भी नामांकन भरा। कैसे? निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल, मैंने पहले भी कहा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो जीतने वाले उम्मीदवार, कई बार बहुत कम अंतर भी होता है कौन जीत सकता कौन नहीं जीत सकता, लेकिन जहां पर पार्टी को लगता है जीत सकता है उसको टिकट देती है। तो बरागटा कोई अर्की की बात? पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने हाल ही में देखा गुजरात में भी पूरे के पूरे मंत्री बदल दिए गए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत। उसके बावजूद भी मात्र 1.5 महीने के अंदर जब चुनाव हुए तो 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीती है। इसी तरह से देश के बाकी हिस्सों में भी हुआ। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता इसको चलाते हैं, कार्यकर्ता ही अपना नेता आगे।
लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे दिवंगत नेता रामविलास पासवान की आज पुण्यतिथि है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कड़ी में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेज प्रताप यादव भी लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय पहुंचे और स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपना पुराना साथी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनकी उम्र नहीं थी, वे बहुत जल्द हम सबको छोड़कर चले गए। रामविलास जी ने जो कार्य किए हैं, जिस तरह से लोगों के विश्वास को जीता था, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान की स्मृति को लेकर जो मांग की जा रही है, हमारी सरकार उन्हें पूरा करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 8 अक्टूबर को ही केंद्रीय मंत्री रहे लोक जनशक्ति पार्टी के कदावर नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद पासवान परिवार में टूट हो गई। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही अलग हो गए। वहीं चिराग पासवान ने पारंपरिक कैलेंडर के मुताबिक हाल ही में 12 सितंबर को पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई। उन्होंने इसमें बड़े स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन पशुपति पारस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। के दिन कैमरा नीचे कीजिए, थोड़ा भैया नहीं आ रहा है। आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था और आज के दिन सब लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जितना काम किया है और जितनी लोकप्रियता उनकी बीच में, तो सदैव इस बात को लोग जानेंगे और जानते रहेंगे। और हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध बहुत पहले जब से शुरू हुआ था, उसी समय से हम लोगों का संबंध रहा। तो इसलिए तो अपना व्यक्तिगत संबंध एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया और इस तरह से कोई उम्र नहीं थी उनके जाने की, लेकिन कुछ तबीयत उनकी ऐसी हो गई कि जिस वक्त वो चले गए तो सबको काफी तकलीफ हुई है। लेकिन अब उन्होंने जो काम किया है और जिस प्रकार से लोगों के साथ उनका संपर्क था, पूरा भरोसा है कि अब आप सब लोग उस चीज को कायम रखेंगे इसके लिए। और उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो तो हम सब दिन रखेंगे। उनके प्रति आदर का भाव हम सब दिन रखेंगे और उनकी स्मृति को लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी काम है वो सब भी किया जाएगा। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुक्रवार को क्षेत्र के 4 जिलों के सोशल मीडिया और आईटी से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की गई।
इसमें प्रदेश स्तर के IT सेल के नेता और संयोजक शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्कशॉप में उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कहा कि सोशल मीडिया संवाद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दोहरा संवाद होता है। मीडिया के दौर में यह बड़ा बदलाव है। पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में दोहरे संवाद को स्थापित करने में काफी समय लगता था, लेकिन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसको तत्कालिकता प्रदान करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी दल सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में भाजपा IT और सोशल मीडिया सेल के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी काफी बड़ी हो जाती है। विपक्ष के किसी भी आरोप का तथ्यात्मक और फोटो के माध्यम से सीधा जवाब देकर सरकार की उपलब्धियों और कार्यशैली को प्रस्तुत किया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने भी आज के इस सबसे बड़े हथियार का उपयोग न केवल संगठनात्मक गतिविधियों के लिए बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए पूरी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम सब जानते हैं समय बदला है। प्रिंट मीडिया की अहमियत को हम आज भी कम नहीं कर सकते, उसकी अपनी जगह है। आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले विजुअल मीडिया आया। विजुअल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा अनेक ऐसे चैनल आए जिन्होंने अपने न्यूज बुलेटिन प्रारंभ किए और हर आधे घंटे में या तत्काल भी आप देखते होंगे कोई घटना कहीं घटित होती है तो उनके रिपोर्टर के माध्यम से या अन्य उनके स्रोत के माध्यम से उनके पास न्यूज आती है, उनके द्वारा हेडलाइंस दे दी जाती है। लेकिन विगत एक दशक से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में भी उसके अलग अलग वर्जन देखने को मिले हैं। पहले हम समाचार के पास जाते थे पढ़ने के लिए, आज समाचार हमारे पास आता है, हमारी जेब में है। अब हमें भटकना नहीं पड़ता है, इंतजार नहीं करना होता है। पहले अगर छुट्टी के दिन है तो व्यक्ति घर में उब जाता था अगर समाचार पत्र नहीं आया, लेकिन आज नहीं आया, उसका स्मार्टफोन है, अपना टैबलेट है, वो तत्काल डाउनलोड कर लेता है, देख लेता है कहां पे क्या घटना घटित हुई, एक एक घटना की जानकारी होती है। और अगर सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं तो देश और दुनिया की एक एक गांव की एक एक खबर की पूरी जानकारी आपके पास होती है। डिजिटल मीडिया ने कितना परिवर्तन ला दिया है, लेकिन आज हर एक व्यक्ति जिसने थोड़ी भी रुचि ली उसकी जेब में एक एक समाचार होता है, उनकी जानकारी होती है। ये तो सबके पास है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये कि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आपके खिलाफ जो दुरुपयोग किया जाता है उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर एकदम जीरो है, जमीन पर जिन लोगों की उपस्थिति एकदम जीरो है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वे लोग जिस तरीके से प्रभावी होकर के हमले करते हैं, जिस तरीके से आपकी अच्छे कार्यों में भी आपको पूरी तरीके से घेरने का प्रयास करते हैं, उन सभी लोगों का जवाब देने के लिए भी हमारे पास एक उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। और उस प्रशिक्षण के लिए गोरखपुर विभाग, जिसमें गोरखपुर कमिश्नरी के चारों जनपद हैं, उनकी विशेष कार्यशाला यहां पर आयोजित की गई है
मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज संजोग है कि मैं भी गोरखपुर में हूँ, तो गोरखपुर में आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका इस कार्यशाला में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगर इन सब के साथ संवाद बना करके हम लोग विपक्ष का जवाब दे सकें तो विपक्ष आपके सामने कहीं नहीं ठहरेगा, वो तो धूल दूषित हो जाएगा, एकदम मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। लेकिन जब हम लोग उसका जवाब ही नहीं देंगे, शांत बैठे रहेंगे, ये मान लेंगे कि नहीं ये सोशल मीडिया पे हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है, हमें इसको देखना ही नहीं है, हमें ट्वीट रिट्वीट कंटेंट उसमें नहीं देना है, कोई कमेंट हमें नहीं करना है, अब तो हो गया काम है। हमें अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करनी होगा। जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार है, अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जानकारी होना। कंटेंट में लिखते हैं छोटे होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, लोग पसंद कर सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और जिससे आज का यह प्लेटफॉर्म, एक कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रदेश से आई हुई सोशल मीडिया की टीम और आईटी की टीम को, क्षेत्र की आईटी और सोशल मीडिया की टीम को, विभाग की आईटी और सोशल मीडिया की टीम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से यहाँ पर आयोजित किया है। आप सबसे मुझे इसी बहाने संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आप सबके इस कार्यशाला के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को, संगठन के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति और इस पूरी कार्यशाला के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत सरकार ने 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के लिए विजेता बोली लगाने वाले की घोषणा की। सरकार के DIPAM सचिव और नागरिक उड्डयन सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने घोषणा की कि टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीती है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 68 साल के अंतराल के बाद एयर इंडिया टाटा के पास वापस जाएगी। टाटा समूह ने 180 अरब रुपए की बोली के साथ एयर इंडिया के लिए हिस्सेदारी जीती। मित्रों, माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2021 में अपने बजट भाषण में ये कहा था कि वर्ष 2021-22 में सरकार एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को पूरा करना चाहती है। इस संदर्भ में डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस की अंतिम कड़ी में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा अधिकृत एयर इंडिया स्पेसिफिक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, जिसको हम ISM कहते हैं, ने विनिंग बिड पर स्वीकृति प्रदान की है। So this is when we started the process, actually it began in July 2017, as you're aware. In the first round, when we had issued the preliminary information memorandum in March 2018, we did not elicit any interest. Then the second round was started with the issue of new PIM on 27 January 2020. We received 7 expressions of interest by December 14, 2020. 5 bidders were disqualified as they did not meet the requirements of PIM, which included the eligibility criteria. Our net worth criteria was 3,500 crore. In second stage, financial bids received on 15th September 2021 from both qualified bidders in sealed cover. This is after the long process of due diligence, which normally follows, including looking into all the contracts and other things, site visits, looking at inspections in the virtual data room, and also the draft share purchase agreement which is shared, and then comments and queries are received thereon. Next. Now we have multi-layered decision making for all significant issues here. It's important to see what the process is.
There is an interministerial group chaired by Secretary Deepam and Secretary Civil Aviation, which has got representation from various other ministries. There's a core group of secretaries chaired by Cabinet Secretary. And then finally, there is an Air India specific alternate mechanism chaired by Home Minister, which is comprising Finance Minister, Minister Civil Aviation, and Minister Commerce and Industry. We have a system of appointing professional advisors to support the process, which includes transaction advisor, legal advisor, and asset valuer. The process has been carried out in a transparent manner with due regard to confidentiality of bidders. And this was a competitive process with competition maintained throughout the transaction process, and including the fact that we do not reveal actually the number of bidders in the offering so as to avoid collusive bidding. Non-core land and assets are not to be offered to the acquirer. So this will actually be taken over to the new company to the Government of India AIAHL. Interest of employees and retired employees have been taken care of. With the EV mode of bidding, which is the enterprise value mode of bidding, bidders got an opportunity to resize the balance sheet under a transparent value discovery process. Security clearance applications of both bidders verified and ascertained that both were security cleared. Then transaction advisor and legal advisor certified that supporting documents submitted by the bidders were in order and both bidders were technically qualified for participation. Bids received. These are the bid received. So the Tata Sons Private Limited, their SPV, Thales Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. The second bidder was consortium led by Shri Ajay Singh. This is a consortium, not an individual sole bid. The transaction does not include non-core assets, including land and building, valued at 14,718 crore. These are not being part of the transaction. These are being transferred to Government of India's AIAHL. It includes Nariman Point, Air India headquarters here, some other buildings. There are subsidiaries where Air India has investments. These will be hived off. So Thales Private Limited, which is basically Tata Sons SPV, has emerged as a successful bidder for the sale of equity shareholding of GOI in Air India, in AIXL, which is a subsidiary of Air India, as a part of this transaction, and 50% of Air India in AISATS, which is another joint venture of Air India, along with management control. Now, going forward from this, a letter of intent will be issued and SPA will be signed with successful bidder. Conditions precedent will be completed by long stop date. Financial statements on long stop date will be prepared and agreed with the successful bidder as per the share purchase agreement already agreed upon. And transaction is expected to close by the end of December 2021. उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में शुक्रवार से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो गई। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई हेली सेवाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 353 करोड़ की लागत से तैयार नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। इसके बाद वह लोकार्पण स्थल पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। आपको बता दें कि बढ़ते पर्यटन और यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते एयरपोर्ट की पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग छोटी पड़ने लगी थी। एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 22 से 25 फ्लाइट के आवागमन से बड़ी बिल्डिंग की जरूरत महसूस की जा रही थी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा और लोगों को राज्य की विराट संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जो हमारे सिपाहियों ने प्रदर्शन किया आज, पैराग्लाइडिंग का, मोटर ग्लाइडिंग का, मुझे तो इस बात की आशंका लग रही थी कि वो हमारे ऊपर ही मंडराने वाला है। तो वो क्षमता हमारी है और मैं श्रीवास्तव जी को कहना चाहता हूं कि जरूर उत्तराखंड को आपको भारत का केंद्र बनाना चाहिए, केवल एरोस्पोर्ट्स के लिए नहीं,
लेकिन मैं तो कहूंगा ड्रोन स्पॉट्स के लिए भी। केंद्र सरकार से आपको जो भी मदद की जरूरत हो, हम आपके लिए तैयार हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।